Hello, students. Good evening to all. Myself Rahul Srivastava, your science educator. And students, welcome to the Chanakya classes. And here, the LiceMeet application, which you can download from the Play Store and enjoy online learning. So, students, in this class, we will learn about the air around us. This is the first lecture of the class, in which we will read all about the air and its presence. So, here you may see the chapter Air Around Us, which means air is present all around us, but we cannot see, we only feel it. हमारे चारों तरफ एयर अवेलेबल है जिसे हम देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, उसे हम फील करते हैं. So we will read in that slide, that chapter, how we feel the air and how the presence of air makes us feel that it is present all around us. So students, we will start this chapter by the introducing about the air. So we might not have seen air. हमने कभी air नहीं देखा, but we feel it. But surely we must have felt its presence in so many ways. हमने इसे बहुत तरीके से feel किया है. Students, you may also feel the air around you. आप भी अपने चारों तरफ आसपास एयर को फील कर सकते हैं. When you see the leaves of the trees moving around, when you see the other elements which flow with the air, when you on the fan, you see that the pages of the books and copies are fluttering together. जब भी आप एयर के प्रेजेंस में जाते हैं, यू सी दैट, आप देखते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं, मूव हो रही हैं, which shows us the presence of the air. We notice it when the leaves of the trees rustle or the cloths hanging on a cloth slide sway. आप देखते हैं कि जब भी हम कपड़ों को सुखाते हैं, जब एयर ब्लो होती है तो कपड़े में मूवमेंट आती है. इट मूव्स विद द एयर, विद द फ्लो ऑफ एयर. जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में वो कपड़ा भी मूव होता है. बट वी कैन नॉट सी, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. वी ओनली फील द एयर. पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन. जब आप फैन ऑन करते हैं, when you study, when you open your books and copies, when the air blows towards that books and copies, the pages of books blows. That means what? It shows the presence of the moving air makes it possible for us to fly our kites. और हम क्या करते हैं, हम एयर के प्रेजेंस के कारण पतंग उड़ा पाते हैं. You and all students can feel this. In the presence of air, we fly the kites. आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग कैसे उड़ पाता है? How it is possible to fly a kite? पतंग उड़ाना कैसे पॉसिबल है? Only due to the air. Air is present all around us. जो वायु है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. And we use it to breathe in and breathe out also. So students, you may see by this tree, the leaves of that tree will shows us the presence of the air. You can see in this figure a flying kite. This flying kite is also showing that presence of air is there. And due to the presence of air, this kite is able to fly. हवा के कारण ये पतंग स्काई में उड़ रही है, which shows the air is present.
Winnowing is more effective in moving air. We may have noticed that during storms and winds blows at a very high speed. आपने और हमने देखा है कि जब हवाएं तेज चलती हैं तो उसे हम स्टॉर्म का नाम देते हैं, उसे हम आंधी कहते हैं। एंड इट इज वेरी डेंजरस। कभी कभी जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो बड़े बड़े पेड़ों को भी क्या करती हैं, वहां से अपरूट कर देती हैं और उसको दूसरे प्लेसेस पे डाल देती हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, when there will be high blowing air, it will uproot the trees also. जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो बड़े से बड़े पेड़ को भी क्या कर सकती है, अपरूट कर सकती है, उसको वहां से अपरूट करके दूसरे प्लेसेस पे ब्लो कर सकती है। इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ देम रूफटॉप्स। कभी कभी ये छतों के ऊपर जो छोटे छोटे प्लांट्स है उसको अपरूट करके हवा की फ्लो के कारण वो प्लांट्स भी हमारी छतों के ऊपर आ जाती हैं। तो एयर, द ब्लोइंग एयर has a type of their blows. How the flow of air is depending on the types of the uprooting plants. जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हवा के फ्लो के कारण उड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते। All living things require air. सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट है। Every living beings which is living on the earth need air. We need air to breathe in. Every organisms need air to breathe in. It is one of the most important components of our life. और ये हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें जीवन जीने के लिए हमारी मदद करता है। In absence of air, no one can live within a minute. Students, so air is too much important to live a life. जीवन जीने के लिए हवा बहुत ही जरूरी है। Now, the presence of air around us. The presence of air around us. How we can know, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे चारों तरफ हवा प्रेजेंट है? So, by doing an activity, we will try to learn it. Air is present everywhere around us. हमारे चारों तरफ air available है. It fills all the empty space. और ये सभी खाली जगहों में भरी हुई है। It has no color and one can see through it. एयर के पास कोई कलर नहीं होता और आप उससे उसके चारों तरफ देख सकते हैं। It is transparent. So lights passes throughout the air. इसके कारण आप उसके आर पार देख सकते हैं। This is called transparent. Air is a transparent medium. The presence of air can be filled by a simple experiment. हम एक एक्सपेरिमेंट करके यह समझेंगे कि हमारे चारों तरफ एयर कैसे फैली हुई। So here the activity 1. So the aim of this activity is to show presence of air around us. इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझेंगे, हम ये जानेंगे कि हमारे चारों तरफ एयर कैसे फैली हुई है, हवा कैसे फैली हुई। So for this, what type of material required? कौन कौन सी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए? Let's look. The material required for this activity is empty bottle. एक आप खाली बॉटल लेंगे जिसमें पानी नहीं है। बॉटल should be empty. आप एक बीकर लेंगे, you will take a beaker and you will take some water. So students, आप एक बीकर में पानी भरेंगे और एक empty बॉटल को, खाली बॉटल को उस
पानी में वर्टिकली प्रेस करेंगे। दैट मीन्स आप उस बॉटल के माउथ को नीचे करके उसको पुश करेंगे। When you will push the bottle inside the water, what will happen? Take an empty glass bottle, turn it upside down. Now dip in the open mouth of the bottle into the bucket filled with water. As you can see in this figure, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने पानी को फिल किया, वाटर को फिल किया है, और इस वाटर में हमने एक एम्प्टी बॉटल को, दैट इज टम्बलर, एक आप ग्लास भी ले सकते हैं, you can take an empty glass also, and you will push this glass downwards the water. What will happen? When you will release it after some time, जब आप उसको रिलीज करेंगे, जब आप थोड़ा सा उसको बेंड करेंगे, तो उसके अंदर से एयर बबल्स निकलेंगे, एयर बबल्स बाहर निकलेंगे, which shows, जो बताते हैं कि आपने जो एम्प्टी ग्लास, टम्बलर या बॉटल पानी के अंदर रखा है, उसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंस था, उसके अंदर एयर प्रेजेंट था, जो पानी के अंदर से बबल्स के फॉर्म में निकलता है। So here we observe that water does not enter the bottle. आप देखेंगे कि उस बॉटल में पानी इंटर नहीं करेगा, जो एम्प्टी ग्लास आपने सिंक किया था उसमें पानी इंटर नहीं करेगा। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, आप क्या करना है, उस बॉटल को, उस ग्लास को थोड़ा सा बेंड करना है, तिरछा करना है, एंड वी ऑब्जर्व दैट नाउ वाटर एंटर्स द बॉटल एंड वी कैन सी बबल्स कमिंग out of the bottle with a blubby sound. That is what? These bubbles will make a blubby sound and which shows, जो यह दर्शाता है, जो यह दिखाता है कि उस ग्लास में ऑलरेडी एयर प्रेजेंट था। So this shows that air was present in the bottle. जिससे आप क्या पता कर सकते हैं कि उस बॉटल में, उस टम्बलर में एयर प्रेजेंट। The bottle was not empty at all, और वो बॉटल पूरी तरह खाली नहीं था। So students, the bottle was filled up of air, उसमें हवा भरी हुई थी, and in fact it was filled completely with air even when it is upside down, and that is why water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape, और हवा निकलने के लिए उसमें कोई स्पेस नहीं था जब आप उसको वर्टिकली पुश कर रहे थे। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा बेंड करते हैं तो उसमें की जो एयर है, जो पहले से उसमें फिल थी, वो बबल्स के रूप में बाहर निकलती है, एंड विच शोज दैट द एयर वाज प्रेजेंट इनसाइड द टम्बलर or the bottle. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles, and water filled up the empty space and the air has occupied. So, air occupied a space. Whenever the air is present, it's occupied the space of all around it. So, students, this activity shows us that air is present everywhere. हवा हमारे चारों तरफ available. Now we will read about the composition of air. अब हम पढ़ेंगे कि हवा में कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं। Composition of air. हवा में कौन कौन सी चीजें मिली हैं, हवा किस चीज का मिश्रण है। So it is a combination of the several gases. Air is the combination of the several gases. So composition of air is what? Air is a mixture of several gases. ये जो air है, जो हवा हमारे चारों तरफ है, ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। एंड वाटर वेपर, इसमें वाटर वेपर है,
एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स, और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें प्रेजेंस। A human being respires about 22,000 times every day. एक ह्यूमन बीइंग, जैसा कि आप सब जानते हैं, we use air to breathe in and breathe out. हम ऑक्सीजन ब्रेथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ आउट करते हैं। दैट मीन्स हम ऑक्सीजन गैस को सांस लेने में यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस छोड़ने में। So here, when a human being breathe in, there is a ratio, there is a data given that 22,000 times every day. A human being respires about 22,000 times every day. एक आदमी एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है। That is a very important data. You may know. एक आदमी, एक मनुष्य क्या करता है? एक दिन में 22,000 बार 22,000 टाइम्स ब्रेथ इन करता है एंड टेक्स इट अबाउट 16 kg ऑफ एयर, और वो कम से कम 16 kg तक हवा ब्रेथ इन कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा ऑल्सो गिवन। 16 kg of air a man breathe in during a day, एक दिन में। Air contains mainly nitrogen, oxygen and a smaller amount of argon, carbon dioxide, water vapor and traces of helium, neon, krypton and xenon. तो एयर में बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं। सबसे अधिक मात्रा में इसमें नाइट्रोजन गैस मिली हुई है। 78% of nitrogen is available in this atmosphere. So students, other gases are oxygen, which is also present. A smaller amount of argon is present also. Carbon dioxide is also present. Water vapor and trace of helium, neon, krypton and xenon. और बहुत ही कम मात्रा में, traces means very a small amount of something. किसी चीज का बहुत ही कम मात्रा में होना is called traces. तो traces of helium, neon, krypton and xenon जो गैसेस हैं, ये सभी बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। And students, you all know that we use O2, oxygen, to breathe in. We use oxygen to breathe in and carbon dioxide to breathe out. So here we will see the presence of how much air is present in our atmosphere. So this is constituents of air by volume. कौन सी गैस कितनी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में मिली हुई है, हम यह देखेंगे। The first is nitrogen. Nitrogen gas, this is also known as N2, is present approx 78%. 78%। सबसे अधिक जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन, O2, this is present 21%. This is present 21%. Carbon dioxide, which we also call CO2, it is present about 0.03%. ये हमारा 0.03% अवेलेबल है। उसी तरह से बहुत सारी गैसेस हैं जो किसी न किसी मात्रा में अवेलेबल है। अदर गैसेस आर ट्रेसेस, तो दूसरी गैसेस हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल। So students, here you can see a bar graph. 78% of nitrogen is present here, N2. 21% of oxygen is present here, known as. So this data is very, very important to understood. So 78% of nitrogen is available in our atmosphere, और जो 21% है
वो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर। तो व्हाट आर दी यूजेस ऑफ दिस गैसेस, इन गैसेस का क्या यूज है एंड वेयर वी यूज इट, हम इसे कहाँ यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन वेरी मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, ये बहुत ही मेजर कंपोनेंट है हवा का, एंड डज नॉट कंबाइन विथ अदर केमिकल्स इजली, और ये इजली किसी भी दूसरे केमिकल से कंबाइन नहीं करता है। और जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है एंड कंबाइन विथ अदर सब्सटेंसेस इजली, और ये आसानी से दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कर लेता है। Necessary for respiration, and respiration is the process to breath in and breath out, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने में हमारी हेल्प करता है, एंड वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is also very important gas, necessary for photosynthesis. Students, is very important process. Photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plants make their own food. Photosynthesis, जिसे आप हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्लांट्स अपना भोजन खुद पकाते हैं। The presence of sunlight, chlorophyll, and we call the leaves the kitchen of the plant. पौधों की रसोई घर, पत्तियां होती हैं जहां पे उनका भोजन पकता है। पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम एस्टोमाटास कहते हैं, और उसी एस्टोमाटास के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो CO2 इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो। आर्गन, ये अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, और वह बहुत ही अनरिएक्टिव गैस है, विच इज प्रेजेंट very less amount in the atmosphere. Water vapor is also very important. Its presence varies from time and from places to place in the air. और ये वाटर वेपर का जो प्रेजेंस है, ये लेयर ऑफ लेयर ये क्या करता है, वैरी करता है, ये बदलता रहता है। अदर जो हमारे गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, एयर हैज इम्प्योरिटीज एंड पॉल्यूटेंट्स सच एज, इसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बहुत सारे गैसेस हमारे एयर में। तो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। नाइट्रोजन का जो इंपॉर्टेंस है हमारे एयर में वो कितना ज्यादा है, बिकॉज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78% in our atmosphere. So here we will see the nitrogen cycle, how nitrogen is being cycled. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हियर N2 इन द एटमॉस्फेयर, जो 78% ऑफ एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारा नाइट्रोजन है, इसे हम यूज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये नाइट्रोजन क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब बाय द सोइल एंड प्लांट्स आल्सो। So when the nitrogen absorbs by the soil, nitrogen fixings by the bacteria takes place. क्या होती है, जो नाइट्रोजन हमारी सॉइल्स के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है, जो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट होता है, विच इज NH3, जिसको हम NH3 कहते हैं। और ये अमोनिया फिर से क्या होती है, हमारा नाइट्रिफिकेशन के थ्रू प्लांट्स के जो
सीड्स और प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एंड प्लांट्स एंड फ्रूट्स दैट द एनिमल ईट, और जो जानवर उस प्लांट को खाते हैं उनमें ये नाइट्रोजन कैरी हो जाती है। एनिमल्स दैट लिव्स ऑन द अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, और ये नाइट्रोजन उस प्लांट्स के थ्रू उन एनिमल्स में जाती है। जब एनिमल्स डेथ करते हैं तो उनकी बॉडी फिर डिकम्पोज होनी शुरू होती है, और अगेन जो उनकी बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो फिर से सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब, जो उसकी बैक्टीरियाज होती हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके वो फिर से सॉइल में मिल जाते हैं। एंड ड्यू टू दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ N2 इन एनिमल्स, और जो प्लांट्स की जो N2 होती है वो एनिमल्स में चली जाती है। जब एनिमल्स डेथ करते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उसको अमोनिफिकेशंस कहते हैं, और वो फिर से हमारे सॉइल में प्रेजेंट हो जाती है। So this is a cycle of nitrogen, how it comes from the atmosphere to soil, again soil to the plants, and soil to the plants, and when the animals eat the plants they absorb the nitrogen, and when the animals death they decompose again to the soil, and this soil is getting back to the atmosphere during the plants, and this is what this is called the importance of nitrogen. So the nitrogen is very important for all living organisms and plants which lives on the earth. Now we will see the oxygen is required for various processes. What is the importance of oxygen? The importance of oxygen in air. हवा में ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस? So students, oxygen is also very important in our atmosphere. It is mainly used for combustion. किसी भी दहन के लिए, किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो the process of burning of fuel in air with release of energy in the form of heat and light. आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है, किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जब जलता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। फॉर बर्निंग ऑक्सीजन इज very important. Second is we use it for respiration. ऑक्सीजन का यूज हम श्वसन में करते हैं। तो श्वसन मीन्स ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, सांस लेना और सांस छोड़ना। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेथ इन ऑक्सीजन, सभी जीवित प्राणी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को सांस लेने के रूप में करते हैं। So it is a form of combustion in which oxygen reacts with food to release energy. जिससे क्या होती है? जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है तो उसकी कंबस्शन होती है, वो जलता है और जल के हमें एनर्जी का फॉर्म क्रिएट करता है, एंड इट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, और ये हमें एनर्जी देता है जिससे हम किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। एंड थर्ड यूज ऑफ ऑक्सीजन इज रस्टिंग, एंड दैट इज व्हाट? रस्टिंग मीन्स जंग लगना। ये भी हम देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ये होता है। व्हेन द आयरन कम विद द कांटेक्ट ऑफ एयर, द corrosion of iron when exposed to air and moisture water. जब आयरन हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लगने लगता है। दिस आल्सो shows the presence of oxygen. So students, we have studied about the uses of nitrogen
and oxygen. Now we have the importance of oxygen in air. We have a figure in which we can see how it's get cycle. Oxygen जो है वो कैसे exchange होता है. So you may see here is a tree. Here is a tree which gives CO2, which gives O2 to the atmosphere and takes CO2 and takes CO2. When this atmosphere, animals and plants breathe in oxygen. From this atmosphere, these all animals and plants, they use oxygen to breathe in. और जो हम ऑक्सीजन ब्रेथ इन करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, पौधे क्या करते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं. They breathe in CO2 and breathe out oxygen. And that's why the plants and animals are interdependent on each other. और हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं. Both the plants and animals are necessary for life. If there is no plants, we will not get the oxygen. If there will be no animals, the plants will not get the carbon dioxide. So these two are interdependent on each other. So you may see in this figure, this plant is releasing oxygen to the atmosphere. ये प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है और ये जो एनिमल है ये CO2 रिलीज कर रहा है which the plant is taking, and the O2 which is the plant releasing is the animal absorbing. So this is what? This is a cycle of exchanging the gases, and that's why these two, plants and animals, are interdependent on. Now importance of कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, ये कैसे इंपॉर्टेंट है. तो यू कैन सी हियर कार्बन डाइऑक्साइड प्लेस अ वाइटल रोल इन लिविंग बीइंग्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. जैसा कि अभी आपने देखा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, the process by which plants make their own food, the carbon dioxide is very very important. वो बहुत ही important. What is photosynthesis? के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. About photosynthesis.